So what does section 114A says? It says presumption as to the absence of consent in certain prosecution for rape. Now this section is very misconstrued section because everybody believes that section 114A applies on the prosecution for rape, on all the prosecution for rape. No, it doesn't. It is only applicable on the prosecution of rape if it falls within one of the clauses under section 376 subsection 2 from clause A to N. ठीक है, उसके बाद क्या साबित करना होता है? देन एक बार ये देख लिया कि केस कम्स अंडर विद इन वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज A to N. ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव the sexual intercourse by the accused person. Then comes the third step. The third step is that where the woman states in her evidence that she did not consent, when the question of consent comes and the woman states in her evidence that she did not consent, then the presumption arises and the court shall presume, mandatorily presume, that she did not consent. Now if you look at section 376 subsection 2, it has some of the clauses. The first being clause A about police officer, clause B about public servant committing rape, clause C about armed forces members committing rape, clause D about the management or jail staff committing rape, and clause E about the management or the staff or hospital committing rape. Then clause F about it's about a person in position of trust or authority towards a woman he committing rape. Then clause G is about rape which is committed during communal or sectarian violence. Clause H is about rape being committed on a woman knowing her to be pregnant. Clause I is about commission of rape on a woman who is incapable of giving consent. Clause K is about that the accused person is in a position of dominance or control over a woman and then he commits rape. Then clause L is about commission of rape on a woman who is suffering from mental or physical disability. Clause M is about that while commission of rape, the accused person causes grievous bodily injury, maims or disfigures or endangers the life of the woman. And clause N is about rape being committed repeatedly on the woman. Only in these clauses. ये थोड़ा छोटा करके बताया, इसमें कुछ क्लॉजेस में एलैबोरेशन थोड़ा ज़्यादा है, देख लीजिएगा एक बार उसे, क्योंकि आईपीसी पे पूरा लेक्चर नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो इसमें सिर्फ इन्हीं केसेस में जब फॉल करेगा एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन प्रूव्ड एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसेंट एंड द वुमन स्टेट्स इन हर एविडेंस दैट शी डिड नॉट कंसेंट, ओनली देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द वुमन डिड नॉट कंसेंट. तो ध्यान रखिएगा, this presumption will not apply on rape simpliciter or where the prosecution is for rape on a breach of promise to marry. ठीक है? If you don't know that, then you should know that under certain situation, breach of promise to marry would be rape if the accused person has obtained the consent of sexual intercourse with the prosecutrix/victim under a false promise of marriage. Because वहाँ पे consent vitiate हो जाती है, because if you read section 90 of IPC where the consent has been given under a misconception of fact, that is no consent at all. And secondly, second criteria ये है breach of promise to marry का, the promise should be false from its very inception and the consent should have been given on such false promise of marriage. फिर उसमें और भी थोड़े पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे कि कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से accused was unable to fulfill his promise, और ये भी नहीं होना चाहिए कि promise was true at the beginning but later due to some circumstances the accused was unable to fulfill his promise. तो ऐसे सिचुएशन में breach of promise to marry rape नहीं कहलाएगा. तो मान लीजिए हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के पर्पज से अज्यूम कर रहे हैं, उसके थोड़े और भी पैरामीटर्स हैं, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये अज्यूम कर रहे हैं द प्रोसिक्यूशन इज फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी और रेप का केस लगा हुआ है. ऐसे केस में क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, क्या ऐसा प्रिजम्पशन लगाएगा कोर्ट? आंसर इज नो, इट वुड नॉट, बिल्कुल भी नहीं करेगा. 114A अप्लाई नहीं करता उस पर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 114A का स्कोप क्या है, क्योंकि लगभग सब लोग इसको मिसकंस्ट्रू करते हैं. सो
सो दैट यू डोंट मिसकंस्ट्रू, मैं आपको अभी से बताया दे रहा हूँ कि ये किस पे अप्लाई होता है। वो लोग सोचते हैं कि 114A हर रेप केस पे अप्लाई होता है। नो इट डजेंट, इट ओनली अप्लाइज ऑन 376 सबसेक्शन 2, उसी पे अप्लाई होता है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है। दिस सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अ मच क्रिटिसाइज्ड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड ऑन 15 सितंबर 1978। अब वैसे तो ये है आईपीसी का टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 114 ने इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अब इस केस में द एक्यूज्ड पर्सन्स हु वर आल्सो अपेलेंट वर बोथ पुलिस कांस्टेबल्स, ठीक है। और इस केस को पॉपुलरली मथुरा रेप केस भी कहा जाता है। मथुरा वाज द नेम ऑफ द वुमन इन दिस केस। नाउ द सुप्रीम कोर्ट in its facts elaborated that the Mathura parents had died when she was a child and she was living with her brother Gama. Both of them worked as laborers to earn a living, and Mathura used to go to the house of Nanshi for work, and during the course of her visits to that house, she came in contact with a person named Ashok. Mathura eventually fell in love with Ashok and they both decided to get married. अब होता क्या है कि इन सब एरियाज़ में जब इस तरीके की मैरिज होती है तो वुमेन की फैमिली को पसंद नहीं आता, वो अक्सर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देते हैं। दैट इज़ प्राइमरली द रीज़न कि आप 366 या किडनैपिंग और अबडक्शन के केसेस बहुत देखते हैं। एक जो उसका सर्टेन बल्क है ना, वो कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फैमिली वाले प्रोसिक्यूट कर देते हैं अंडर 366 ऑफ द आईपीसी। तो यहाँ पे इनका ब्रदर भी नाराज़ हो गया और उसने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया, एफआईआर लॉन्च की in context of section 366 IPC and kidnapping by Mathura's in-laws, जिसमें नंशी, उसका हस्बैंड और अशोक, ये सारे लोग शामिल थे। नंशी का हस्बैंड लक्ष्मण था और अशोक मथुरा का हस्बैंड था। अब हुआ क्या कि इन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। अब पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। अब पूछताछ के बाद हुआ क्या कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो बाकी के अक्यूज पर्सन्स थे उनको वापस भेज दिया, और जो गामा था मथुरा का भाई, उसको बोला कि आप इनकी बर्थ डेट की एंट्री आप लेके आइए, उसकी कॉपी लेके आइए। तो वो भी चला गया। तो जैसे जब ये लोग गए ना, सो व्हाट द अक्यूज पर्सन्स डिड दैट दे कमिटेड रेप ऑन हर इमीडिएटली आफ्टर दैट। अब district judge said that Mathura was a shocking liar and her testimony is riddled with falsehood and improbabilities. And the district court, the sessions judge, came to the conclusion that she had sexual intercourse while at the police station, but the rape has not been proved because she was habituated to sexual intercourse. But when Mathura realized that her in-laws, such as Nanshi and her husband, would get very angry with her, she had to sound virtuous before them. Yes, ये session judge की story है, by the way. He is saying that. And then the session judge says, really speaking, she would have surrendered her body to the constable. So on that basis, the session judge acquitted the appellants. The High Court reversed the order of the acquittal, and the High Court found that sexual intercourse was forcible and amounted to rape. Since both the accused were strangers to Mathura, it was highly improbable that Mathura would make overtures or invite the accused to satisfy her sexual desires. It is possible that the girl who was involved in a complaint filed by her brother would make such overtures or advances. However, the initiative must have come from the accused, and if such initiative came from the accused, she could not have resisted the same. And the High Court convicted the appellants. अब सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। सुप्रीम कोर्ट में अपील के 4 ग्राउंड लिए गए। पहला, that there is no direct evidence of rape, ठीक है। और ये बोला गया था कि there is a passive submission from the girl. पैसिव सबमिशन था। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि देयर हैज बीन अ पैसिव कंसेंट बाय द वुमन। दैट इज द ग्राउंड दैट हैज बीन टेकन इन अपील। सेकेंडली, द alleged intercourse was a peaceful affair and the story of stiff resistance is all false. Third ground that was taken was that averments of the girl that she had shouted loudly is false. And the fourth ground that was taken was that the reasoning of the High Court that the girl must have submitted to sexual intercourse because of fear does not amount to consent. सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कहना ये था, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपील सुनी तो उनका बेसिक कहना ये था, द केस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया, क्योंकि जो सेशन जज के सामने जो इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस थे टेस्टिमनी में और जो रिकॉर्ड ऑफ द केस जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दी FIR द गर्ल हैज़ मेड सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट तुकाराम and has gone back at the trial and the acts which she attributed in her deposition to Ganpat instead. मतलब basically the Supreme Court is saying that जो allegation उन्होंने FIR में तुकाराम के लिए दिए थे वो फिर ट्रायल में गणपत के लिए दे रही थी, and she revised from her earlier statement. Those allegations were that Tukaram had caught hold of her in the first instance, had taken her to the latrine in the rear of the main building, had lit a torch and had stared at her private parts in the torchlight. Now, if the girl could alter her position in regard to these serious allegations at will, where is the assurance that her word is truthful in relation to what she now says about Tukaram? The High Court appears to have been influenced by the fact that Tukaram was present at the police station when the incident took place and that he left it after the incident. This circumstance, in our opinion, is not inculpatory and is capable of more explanation than the one. We do not therefore propose to take the girl at her word in relation to Tukaram appellant and hold the charge remains wholly unproved against him. तो ऑल इन ऑल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं कंसेंट की बात को नहीं माना. उन्होंने ये बात नहीं मानी कि the woman was saying that she didn't consent and there was inherent improbabilities in her statement as well regarding some points. लेकिन all in all woman ने जो बात बोली थी कि I did not consent to the sexual intercourse, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. अब इस केस की वजह से बहुत ह्यू एंड क्राई मचा. एन अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 114A. बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इस केस के बाद. लेकिन क्या है ना, लोग ये तो बताते हैं कि क्रिटिसिज्म हुआ और सिर्फ सिंपली बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंट नहीं मानी थी, पर क्यों नहीं मानी थी वो नहीं बताते. तो मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं मानी थी, क्या हुआ था केस में ऐसा कि नहीं माना गया. बिकॉज दे लुक्ड एट द इंटायर रिकॉर्ड, दे फाउंड कि एलिगेशन स्विच हो रहे हैं. मेरे हिसाब से मेयरली एलिगेशन स्विच हुए और आइडेंटिटी ही स्विच हुई है. दैट इज़ नॉट एनफ टू जस्ट से दैट द वुमन इज आउटराइट लाइंग. क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि द वुमन वॉज कन्फ्यूज अबाउट द आइडेंटिटी, ये भी हो सकता है ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड द केस ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस. तो ये हो सकता है कि द वुमन वॉज कन्फ्यूज अबाउट द आइडेंटिटी. तो एक एलिगेशन उसने जो पहले एक अक्यूज के खिलाफ दिया था, देन शी रियलाइज ओके दिस वॉज नॉट दैट अक्यूज, इट वॉज अनदर. तो ट्रायल पे शी डिपोज्ड कि नो इट वॉज नॉट तुकाराम, इट वॉज द अक्यूज्ड गणपत. तो ऐसी सिचुएशन में एलिगेशन तो रह रहा है ना. The allegation has not been wiped out. Only the identity of the accused person has been switched. In this minor circumstance, the Supreme Court misbelieving the woman, with due respect, is uncalled for, to say the least. क्योंकि यहाँ पे जब point of substance है that has remained, but the only switching which has happened is with regard to identity of the accused. ध्यान रखना चाहिए ये केस है 1978 का. तो 1978 में कोई DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का तो जजमेंट था नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में ये भी ज़रूरी नहीं था कि इन लोग के पास अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के जो बैजेस होते हैं ये हो सकता है वो वहाँ पे ना हो. सो इट इज़ वेरी प्रोबेबल दैट शी माइट बी कन्फ्यूज्ड, बट द सुप्रीम कोर्ट नेवर फाउंड द केस फिटिंग टू रिलाई ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द वुमन. दिस इज़ वाई द लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस सेक्शन 114A. Because the offense was not on that point that the Supreme Court acquitted the accused person. इस बात पे offense नहीं था. The offense that happened, मतलब जो outrage हुआ था, the people were offended on this point, that the woman kept on saying that she didn't consent, and the Supreme Court said no, we don't believe that. तो इसीलिए ये point लाया गया कि ऐसी situation में अगर कभी भी दोबारा ऐसी सिचुएशन होती है एंड सेक्शन 376(2) में फॉल करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन प्रूव्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन, एंड व्हेन कम्स द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट एंड द वुमन सेज दैट शी डिड नॉट कंसेंट, एंड द कोर्ट शैड मैंडेटरीली प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड.
ध्यान रखिएगा ये रेप सिंप्लिसिटर पे नहीं अप्लाई करता। अब हम लोग सेक्शन 115 की बात करते हैं, दैट इज एस्टॉपल। मैंने आपको बोला था ना कि सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को अभी रखे रहिए, ये उसको सेक्शन 115 से कपल विथ करना है। आप सेक्शन 115 देखिए। When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and act upon such belief, neither he or his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such other person or his representative to deny the truth of that thing. Illustration: A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. So what is estoppel? देखिए, in a certain sense, estoppel is a rule of evidence. पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा। The principle on which the doctrine of estoppel is based is that it would be most inequitable and unjust that if one person, by a representation made or by conduct amounting to a representation, had induced another to act as he would not otherwise done, the person who made the representation should not be allowed to deny or repudiate the effect of the former statement to the loss or injury of the person who acted upon it. अब देखिए, in the words of the Supreme Court in Gyarsi Rai versus Dhansukh Lal, decided on 18th November 1964, Supreme Court says that to invoke the doctrine of estoppel, 3 conditions must be satisfied. पहला, representation by a person to another. पहली चीज तो representation होना चाहिए। दूसरा, the other shall have acted upon such representation. And third, such action shall have been detrimental to the interest of the person to whom the representation has been made. ये 3 condition essential element है। अब estoppel की जो डॉक्ट्रिन है वो एक मैक्सिम पे बेस्ड है। द मैक्सिम जो है उसका नाम है एलिजेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डेंडस। इसका मतलब होता है अ पार्टी इज नॉट टू बी हर्ड टू अलेज द कॉन्ट्रेरी। और जो एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन है, इट इज अ स्पीशी ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ जूरिस एट द जोरे। कंक्लूसिव प्रूफ की एक स्पीशी है ये। जो प्रिजम्पशन जूरिस एट द जोरे की जो एक स्पीशी है वो एस्टॉपल की भी डॉक्ट्रिन है। मतलब एक तरीके से एस्टॉपल इन अपने इफेक्ट में अमाउंट्स टू कंक्लूसिव और इररिबटेबल प्रिजम्पशन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन BL श्रीधर वर्सेस KM मुनि रेड्डी, वेयर उस स्पीशी का इफेक्ट ये होता है कि वेयर द अ फैक्ट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड बट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी। अब एस्टॉपल को मैंने आपको बता दिया, इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ रूल ऑफ एविडेंस, जो कि प्रीलिम्स में जब भी ये सवाल आए तो आप इसे रूल ऑफ एविडेंस पे ही टिक करिएगा। पर प्रैक्टिकली आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एस्टॉपल इवन दो इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ रूल ऑफ एविडेंस, बट कंसेप्ट के कई इफेक्ट ऐसे हैं विच अमाउंट्स टू सब्सटैंशिव रूल ऑफ लॉ, बिकॉज sometimes the effect of doctrine of estoppel is to create some sort of rights which wouldn't be there if the condition of estoppel had not been satisfied. ठीक है, मतलब एस्टॉपल कभी कभी उन राइट्स को एग्जिस्टेंस में ले आती है जो नहीं होते अगर एग्जिस्टेंस की अगर एस्टॉपल की कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं की जाती। एस्टॉपल की क्या कंडीशन है? प्राइमरली 3 है। पहला, रिप्रेजेंटेशन बाय वन पर्सन टू अनदर। दूसरा, सेकंड पर्सन शुड एक्ट अपॉन सच रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा, such action should have been made to the detriment to the interest of the person to whom the representation has been made. ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन सेक्शन 115 वुड बी ऑपरेटिव। जैसा कि आप इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं, एक चीज़ देखिए इलस्ट्रेशन में 115 के पहली चीज़ जो आप गौर करेंगे कि ए ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया बी को कि एक सर्टेन लॉन्ग उसको बिलोंग करता है, और फिर वो इंड्यूस करता है बी को कि आप उसको खरीदो और उसके लिए पैसा दो। लेकिन उस वक्त तक
जब तक वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा था वो लैंड उसको बिलोंग नहीं करता था। मान लीजिए सेल के बाद लैंड जो है एक्चुअली में ए की प्रॉपर्टी हो जाती है ना, तो ए अगर जाएगा कोर्ट में टू सेट असाइड सेल इस ग्राउंड को लेते हुए कि क्योंकि उसके पास एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट टाइटल नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में वो टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकता था उस स्टेज पे, है ना, बिकॉज नो वन कैन ट्रांसफर अ टाइटल विच ही डजंट हैव। तो ऐसी सिचुएशन में बी को जो उसने प्रॉपर्टी बेची है वो उसको बी को नहीं मिल सकती, वो वापस ए को मिल जानी चाहिए एंड द ट्रांजैक्शन शुड बी सेट असाइड। अब ऐसी स्टेज पे अगर कोर्ट ने ये बात अलाउ कर दी तो बी के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। बी का जो इंटरेस्ट है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा, वो पैसा दे चुका है, वो उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे ऐड कर चुका है, उसको नहीं पता था रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। और ऐसी स्टेज पे अगर कोर्ट ने अलाउ किया ए को टू रिवोक द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, then that would be wholly iniquitous and unjust. That is why, while invoking the doctrine of estoppel, the court will not allow A to prove his want of title. अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन एक पार्टी ने दिया, ठीक है, अब उस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट उनके प्राइवीज पे क्या होगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट पे क्या होगा। इन अदर वर्ड्स लेट मी रीफ्रेज माई क्वेश्चन, क्या अगर एक पार्टी ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया और ऐसा असर्शन किया विच वुड अमाउंट टू एस्टॉपल, तो क्या वो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट पे अप्लाई करेगा, उसके प्राइवीज पे अप्लाई करेगा? द आंसर इज येस, बिकॉज द प्रिंसिपल इज क्वाई सेंटेट कमोडम सेंटायर डेबिट एट ओनस। इसका मतलब होता है the privy shall stand in no better position than the party through whom he derives his title, if the latter is not at the liberty to contradict what he has said formally or done formally, then the privies would be subjected to a like disability. इस बात पे क्लियर रहिएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल उसके प्राइवीज पे भी अप्लाई करेगी। वैसे सेक्शन 115 ही अगर आप देख लें तो वहाँ पे बोलता है कि नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। ये जो इंसर्शन किया गया है वो इसी प्रिंसिपल पे किया गया है, क्वाई सेंटेड कमोडम सेंटाया डेबिट एट ओनस, ठीक है, यही प्रिंसिपल है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है ही who derives benefit ought to bear a burden। ठीक है, अगर आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं तो बर्डन भी उसी बेनिफिट के साथ जो आता है वो भी डिराइव करना होगा, वही एस्टॉपल पे भी अमाउंट करता है। तो अगर एक पार्टी ने कोई असर्शन दिया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट भी बाइंड हो जाएंगे उससे, इफ दे डिराइव देयर टाइटल फ्रॉम हिम। तो आज के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से डील नहीं कर पाएंगे इंटायरली विद द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल और इसके जितने भी डायमेंशन होते हैं, लेकिन आज हम लोग प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से ज़रूर डील करेंगे। तो एस्टॉपल में 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको कंडीशंस बताए। एक चीज़ ये जान लीजिए कि एडमिशन और एस्टॉपल में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एस्टॉपल्स? अब याद रखिएगा, एडमिशंस which are declarations against the interest of one person are good evidence, but they are not conclusive by themselves, and the party is always at the liberty to withdraw the admissions by proving that they are either mistaken or untrue, but the estoppel creates an absolute bar। आप estoppel को गलत नहीं दिखा सकते, ठीक है, that is why it is called as a species of presumptio juris et de jure, conclusive evidence की एक species होती है ये। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एस्टॉपल डील्स विद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट राइट। हमेशा एस्टॉपल जो है ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, एस्टॉपल फैक्ट्स पे अप्लाई करता है, कभी लॉ पे नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, नाइदर इट वुड अप्लाई अगेंस्ट अ स्टैट्यूट। तो पहले मैं आज कुछ एक्सेप्शन बता दूं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के। पहला एक्सेप्शन है, एस्टॉपल कभी माइनर के खिलाफ काम नहीं करेगा। एस्टॉपल डज नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइनर। Secondly,
when true state of affairs are known to both of the parties, when true facts are known to both parties, then in that case estoppel does not apply. क्योंकि वहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि अदर पार्टी हैज रिलाइड ऑन दैट स्टेटमेंट ना. अगर एक आदमी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और दूसरी पार्टी को सच पता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो झूठा है, इन दैट सिचुएशन में एस्टॉपल कहाँ से अराइज कर सकता है? इट कैन नॉट, बिकॉज द अदर पार्टी हैज नॉट रिलाइड ऑन दैट स्टेटमेंट एट ऑल. तीसरा ये है कि जो दूसरी पार्टी अदर पार्टी है जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, दूसरी पार्टी को फ्रॉड या नेग्लिजेंस का गिल्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है. चौथा पॉइंट है कि अगर दोनों पार्टी ने एस्टॉपल प्लीड किया, पहली पार्टी एस्टॉपल प्लीड कर रही है, दूसरी पार्टी भी एस्टॉपल प्लीड कर रही है, ऐसे केस में क्या होता है? एस्टॉपल अगेंस्ट एस्टॉपल एनफोर्स द मैटर एट लार्ज. इसका ये मतलब है कि अगर दोनों पार्टीज एस्टॉपल प्लीड करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, देन इन दैट सिचुएशन दोनों पार्टीज को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया जाएगा और फिर कोर्ट इंक्वायर करेगा कि व्हाट इज द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स. ऐसी सिचुएशन में एस्टॉपल अगेंस्ट एस्टॉपल बोथ अनाइलेट ईच अदर, एक दूसरे का ही वो विनाश कर देते हैं. एंड इट अनफर्ल्स द मैटर एट लार्ज. एंड ऐसे केस में कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि वो रियल राइट्स और मैटर्स को इंक्वायर करे और देखे कि ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. पांचवा याद रखिएगा, एस्टॉपल डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट अ पॉइंट ऑफ लॉ और अगेंस्ट अ स्टैट्यूट. ठीक है. एस्टॉपल डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट अ स्टैट्यूट, सॉवरेन एक्ट्स और लॉ. कुछ और जनरल टर्म्स का ध्यान रखिए. एस्टॉपल इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन. इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ रूल ऑफ एविडेंस विच प्रिक्लूड्स अ पर्सन from denying the truth of the statement previously made by himself. ठीक है. An estoppel is generally not a cause of action. आप estoppel के basis पे सूट नहीं ला सकते. ठीक है. You cannot bring a suit on the basis of estoppel. It is only a rule of evidence which precludes a person from denying the truth of some statement previously made by himself. किन्हीं judgments में estoppel को as a rule of equity and fairness भी describe किया गया है. It is very correct to say that estoppel is a rule of equity. Equity से ही create हुआ है estoppel because court of chancery jurisdiction ने सबसे पहले इसको create किया था. वो courts of equity कहलाते थे. तो it is very fair to say that it is a rule of equity, पर prelims में इसको rule of evidence पे टिक करिएगा. ठीक है. क्योंकि preliminary exam एक set structure में चलते हैं. Mains में आप लिख सकते हैं it was created from an equitable rule, it is a rule of evidence, क्योंकि आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं ना बाकी चीज़ें कि रूल ऑफ इक्विटी भी है, रूल ऑफ एविडेंस भी है. पर प्रिलिमिनरी में आप ऐसा नहीं कर सकते. प्रिलिमिनरी में रूल ऑफ एविडेंस पे ही टिक करिएगा. जैसे कि मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता देता हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ इक्विटी की तरह उसको डिस्क्राइब किया था. केस का नाम है इंदिरा बाई वर्सेस नंद किशोर. द सुप्रीम कोर्ट सेड एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ इक्विटी flowing out of fairness, striking on behavior deficient in good faith. It operates as a check on spurious conduct by preventing the inducer from taking advantage and assailing forfeiture already accomplished. It is invoked and applied to aid the law in administration of justice. फिर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना चाहिए, एस्टॉपल और प्रिजम्पशंस में डिफरेंस क्या है. सी एस्टॉपल्स जो हैं they are personal disqualification laid upon a person peculiarly by the circumstances of his own creation, while the presumption is a rule that a particular inference shall be drawn from particular set of fact whoever proves them. ठीक है. estoppels are personal disqualification क्योंकि एक आदमी खुद ही उसको वैसे सिचुएशन क्रिएट करता है ना. जैसे कि आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं 115 के कि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, अगली पार्टी ने उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव कर लिया, उस बिलीव पे जब उसने एक्ट किया, देन वो क्रिएटेड ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज, द पार्टी इटसेल्फ. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एन एस्टॉपल इज अ पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन लेड अपॉन अ पर्सन peculiarly from the circumstances of his own creation in the particular facts of the case, whereas a presumption is a rule that a particular inference shall be drawn from particular set of facts whoever proves them. कभी कभी लॉ मैंडेट कर देता है कि ये सर्कमस्टेंसेस प्रूव हो जाए द कोर्ट शैल प्रिज्यूम समथिंग. समटाइम्स लॉ सेज दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम समथिंग. वैसे ही देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टॉपल एंड रेस जुडिकाटा आल्सो. पहला,
estoppel is a part of law of evidence and proceeds upon an equitable principle of altered situation. The doctrine of res judicata belongs to the procedure and is based on principle that there must be an end to litigation. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो res judicata है ना, उसको estoppel by judgment भी कहा जाता है, ठीक है, या estoppel by accord. एस्टॉपल बाय जजमेंट और एस्टॉपल बाय अकॉर्ड दोनों रेस जुडिकाटा के कंटेक्स्ट में बोले जाते हैं, ठीक है. द सेकेंड डिफरेंस इज दैट द एस्टॉपल प्रोहिबिट्स अ पार्टी फ्रॉम प्रूविंग एनीथिंग विच कॉन्ट्राडिक्ट्स हिज प्रीवियस डिक्लेरेशन, एक्ट्स और ओमिशन टू द प्रेजुडिस ऑफ द पार्टी वो रिलाइज अपॉन देम, ठीक है, जिसने अपनी पोजिशन ऑल्टर कर ली है ऑन रिलाइंग ऑन सच डिक्लेरेशन, एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी. While res judicata prohibits the court from inquiring a matter already adjudicated. ठीक है, res judicata prohibits the court from inquiring into a matter, while estoppel prohibits a party from proving anything which contradicts his previous declaration, acts or omission to the prejudice of the party who relied upon them and altered his positions based on such declaration, acts or omissions by the other party. Third difference is that the estoppel shuts the mouths of the party, while res judicata outs the jurisdiction of the court. ये बहुत प्राइमरी डिफरेंस है, ठीक है. रेस जुडिकाटा कहाँ पे अफेक्ट करेगा? इट वुड outs the jurisdiction of the court to pronounce a judgment on the same issue, while the estoppel will merely make a party shut its mouth to make a representation contrary to what he earlier represented. इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, res judicata precludes a man from avering the same thing twice over in successive litigations. दो litigation में same बात बोलने से res judicata रोकता है, while estoppel prevents him saying one thing at one time and opposite the another. ठीक है, कि एक वक्त पे एक चीज़ बोल रहे हैं फिर आगे चल के दूसरी चीज़ बोल रहे हैं. estoppel इस चीज़ को रोकता है, while res judicata किस चीज़ को रोकता है? एक ही चीज़ को दो बार बोलना इन सक्सेसिव लिटिगेशन. एक बार एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसको अगर आप दोबारा लिटिगेशन में लाना चाहेंगे तो रेस जुडिकाटा उसको रोकेगा. अब एग्जाम के पर्पज से थोड़ा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ. देयर इज दिस केस ऑफ पिकर्ड वर्सेस सेयर्स, जिसमें बोला जाता है कि रूल ऑफ एस्टॉपल ले डाउन हुआ. तो फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन अगर कभी भी पूछा जाए प्रीलिम्स में कि या मेंस में भी कि पहला केस कौन सा था जिसमें the rule of estoppel was laid down, then that was Pickard versus Sears. अब ये academically well accepted case है, लेकिन to be very honest जो rule of estoppel है ना, ये इससे भी पुराना जाता है. It goes way way back. लेकिन मैं आपको just for the sake of clarity बता दूँ, Pickard versus Sears को वही पहला केस माना जाता है इस पॉइंट पे जिसने ये पॉइंट ले डाउन किया है. इसमें बोला गया था the rule of law is clear where one by his words or conduct willfully causes another to believe in its existence of a certain state of things and induces him to act upon that belief so as to alter his own previous position, the former is concluded from averring against the latter a different state of thing as existing at the same time. मतलब कोर्ट आपसे ये कह रहा है कि अगर एक आदमी ने एक असर्शन दे के या एक रिप्रेजेंटेशन दे के दूसरे को मेक कर दिया कि वो अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ले अपने प्रेजुडिस को लेके, बिलीविंग ऑन माय रिप्रेजेंटेशन, देन ऑन दैट सिचुएशन द पार्टी हु गेव द रिप्रेजेंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस वुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्ट्राडिक्ट सच रिप्रेजेंटेशन. दे वोंट बी अलाउड टू कॉन्ट्राडिक्ट सच रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, यही है एस्टॉपल सिंपली. लेकिन फिर एस्टॉपल में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एस्टॉपल. देन देयर आर मेनी डॉक्ट्रिन्स, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्वेसेंस. इनमें और एस्टॉपल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो वेवर और एस्टॉपल के कंटेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, देयर इज़ वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वेवर, और वो ये है कि waiver is a voluntarily and intentional relinquishment of a known right. ठीक है, वेवर को साबित करने के लिए बड़ा एसेंशियल होता है कि किसी को अपने राइट्स पता हैं, वो जानता है कॉन्ट्रैक्ट्स में उसके क्या राइट्स हैं, और जानते हुए वॉलंटरी अपने राइट्स को फोरसेक करता है या ऐसा कंडक्ट दिखाता है
which warrants an inference of the relinquishment, then that would amount to waiver. अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि estoppel is not a cause of action, but waiver on the other hand is contractual and may constitute a cause of action if it is an agreement to release or not to assert a particular right. इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ. मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप उसको प्रीमियम मंथली देते हैं या ईयरली देते हैं. एक बार नोटिफिकेशन आपके पास आए कि आपने एक टाइम का प्रीमियम नहीं दिया, एक मंथ का प्रीमियम नहीं दिया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई है. आप जो है प्रीमियम देते रहते हैं, ठीक है, और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है प्रीमियम एक्सेप्ट करती रहती है लगातार. अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज कर जाते हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं और आप फिर सूट इंस्टीट्यूट करते हैं या उस इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि भाई क्लेम का ग्राउंड अराइज हो गया है, मुझे इंश्योरेंस के अंदर पैसा चाहिए. और अब अगर वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नहीं, आपकी तो पॉलिसी उस वक्त लैप्स कर गई थी, तो यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के साथ जो इंश्योरेंस कंपनी जो बार बार आपकी नेक्स्ट प्रीमियम एक्सेप्ट कर रही थी ना, इससे ये दिखता है कि इट हैज वेव्ड इट्स राइट. देन वेवर कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन व्हाइल द एस्टॉपल कैन नॉट. ये चीज आप एस्टॉपल पे नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एस्टॉपल, दिस इज वेवर. क्योंकि अगर पॉलिसी लैप्स कर गई थी, then there is no point in that insurance company to accept the subsequent premiums. और अगर वो subsequent premiums accept कर रही है तो इसका मतलब है पॉलिसी लैप्स नहीं की है. So in either scenario, even though it might have given you a notification that your policy lapsed on account of non-payment of a particular month's premium, but thereafter if it accepted subsequent payments, including that where you covered up the premium of that month which the policy was saying that you lapsed, मान लीजिए उसका भी आपने पेमेंट कर दिया था और आगे भी आप पेमेंट करते रहे, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है, it would not be permitted to claim that the policy has lapsed because it has waived its right by a subsequent conduct. जो वेवर है ना, ये इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल्स में और कोर्ट्स में बहुत यूज होता है. और वेवर के डायमेंशंस और भी हैं, बस याद रखिएगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट्स पे नहीं अप्लाई होती, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेल्म में नहीं अप्लाई होती, कॉन्ट्रैक्चुअल रेल्म तक अप्लाई करती है. एक और लाइन याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं, देयर इज नो सच थिंग एज एन एस्टॉपल बाय वेवर. वेवर और एस्टॉपल अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो मान लीजिए अगर कोई एजेंट है, ठीक है, किसी प्रिंसिपल का कोई एजेंट है और उसके पास पूरी अथॉरिटी है to make an agreement on behalf of his principal, and the agent agrees to waive some of the rights of the principal, then the principal would be bound by such contract. Principal bound हो जाता है. आपको पता है कि अगर कोई एजेंट अपने अथॉरिटी के स्कोप में एक्ट करता है, then he binds the principal. और उस अथॉरिटी के स्कोप में अगर वो प्रिंसिपल के कुछ राइट वेव करता है, इवन in that situation the principal would be bound. वहां पे ये प्ली नहीं ली जाती है कि प्रिंसिपल हैज बीन एस्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग इट बिकॉज द एजेंट हैज मेड सच रिप्रेजेंटेशंस. वहां पे ये प्ली नहीं ली जा सकती, एस्टॉपल की प्ली नहीं ली जा सकती, वहां वेवर की प्ली ली जाती है. देयर इज नो सच थिंग एज एन एस्टॉपल बाय वेवर. ये बात का ध्यान रखिएगा. और याद रखिएगा, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वेवर इज दैट देयर मस्ट बी वॉलंटरी एंड इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ नोन राइट or such conduct as warrants the inference that the relinquishment of such right, ठीक है, it means forsaking the assertion or right at a proper opportunity. For that purpose you can refer to the judgment of H.P. Basavaraj, dead, represented by legal representatives versus Canara Bank. अक्सर सिविल केसेस में आपको दिखेगा कि पार्टी के बगल में डेड लिखा है. इतने लंबे चलते हैं कुछ केसेस. अगर पार्टी अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है तो वेवर का इशू अराइज कभी नहीं होगा. ये बात याद रखिएगा. इफ द पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट हर राइट्स और हिज और हर राइट्स, देन इन दैट सिचुएशन द क्वेश्चन ऑफ वेवर वुड नॉट अराइज. वेवर के लिए वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अवेयर नहीं है देन यू कैन नॉट वेव. आप वेव वही कर सकते हैं जो आप जानते हैं. वेवर का एक और इलस्ट्रेशन ध्यान में रखिए.
कि देखिए वेवर के लिए दो पार्टीज होती हैं हमेशा, एक जो बेनिफिट वेव कर रही है और दूसरी जिसको बेनिफिट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड हैं, बहुत आसान सा तरीका है इसको समझने का कि मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड हैं और आपका एक टेनेंट है, वो आपको मंथली रेंट पे करता है, लेट अस सपोज 20,000। अब ऐसी सिचुएशन में यू एज अ लैंडलॉर्ड अब एक महीने का रेंट वेव कर देते हैं। ठीक है, वेव कर देते हैं, आपको पूरी तरीके से पता है कि एक महीने का मैंने जाने दो, इस महीने मत दो ना। इन दिस सिचुएशन दिस वुड अमाउंट टू वेवर, और बेनिफिट किसके पास जाएगा? बेनिफिट जाएगा टेनेंट के पास। अब ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड ऐसा सूट नहीं ला सकते कहने के लिए कि टेनेंट हैज नॉट गिवन मी स्पेसिफिक रेंट एंड नाउ आई एम इंस्टीट्यूटिंग अ सूट in order to eject such tenant from such property for the non payment of rent। ये नहीं कर सकते, ठीक है, because you have waived your right on that particular month। उस particular month के पेमेंट को लेके आपने अपना राइट वेव किया है। अब मान लीजिए आगे जो टेनेंट है आपको रेंट ना दे, तो वहाँ पे आपने वेवर नहीं किया, तो वहाँ के लिए आप सूट ला सकते हैं, पर जिस मंथ आपने रेंट वेव कर दिया उस मंथ के लिए आप सूट नहीं ला पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आप एस्टॉपल देख रहे हैं सेक्शन 115 में और 116 और 17 में भी, इसको बोला जाता है एस्टॉपल इन पायस, PAIS। इसका मतलब होता है एस्टॉपल इन द कंट्री और बिफोर द पब्लिक। अब एस्टॉपल इन पायस अराइजेस फ्रॉम फर्स्ट अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड from act or conduct or misrepresentation which has induced a change of position in accordance with the intention of the party against whom the estoppel is alleged. And third way is if the ingredients of any of the specific provisions of the statute creating the estoppel are satisfied. तो जो सेक्शन 115 से लेके 117 तक आप जो एस्टॉपल के प्रोविजन देखेंगे, उसके लिए एक चीज़ जान लीजिएगा, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एस्टॉपल इन पायस बाय कंडक्ट। ठीक है, एस्टॉपल इन पायस बाय कंडक्ट। अब क्योंकि एस्टॉपल की जो डॉक्ट्रिन है वो सिविल लॉ में बहुत जगह जाती है, दैट इज़ वाई इट विल टेक अ बिट ऑफ अ टाइम टू एक्सप्लेन यू द इंटायरिटी ऑफ इट। जैसे कि आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ एस्टॉपल का, जो प्रैक्टिकली कई बार आप जुडिशल सर्विस में देखेंगे भी, कि कई बार कुछ पर्सन्स होते हैं जो मेंस में या प्रीलिम्स में नहीं निकाल पाते बिकॉज एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिट पिटिशन में उस प्रोस्पेक्टस को ही चैलेंज कर देते हैं, मतलब उस नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर देते हैं, और जो मिनिमम क्राइटेरिया था 60% मार्क्स लाने का, 50% मार्क्स लाने का, कहते हैं कि ये गलत है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट उनको पता है क्या कहता है, उनको कहता है कि आपने गेम के रूल्स जानते हुए गेम में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद यू फेल्ड। वंस यू डू सो you are stopped from challenging the validity of the prospectus to the selection that has already been made। एक बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो पार्टिसिपेशन करने के बाद यू कैन नॉट चैलेंज इट, देन यू कैन नॉट चैलेंज कि ये जो 60% की लिमिट है इसको रिलैक्स करना चाहिए या 50% से इसको 45% या 40% कर देना चाहिए, देन यू वोंट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, ये अक्सर कई जजमेंट्स में होता है, रिट प्रोसीडिंग्स में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील आती है, उन मैटर्स में भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज तो मैं यहीं पे रैप अप कर रहा हूँ, लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, एस्टॉपल की जितनी भी डॉक्ट्रिन है उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी अलग अलग काइंड्स हैं, कहाँ ओवरलैप होता है, कहाँ क्या चीज़ होती है। वेवर का तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इट कैन बी यूज टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ राइट, वेल द एस्टॉपल जनरली एस्टॉपल इज़ नॉट देयर टू क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ राइट, उस पर सूट नहीं बेस होता। लेकिन एक ब्रांच में मैंने बोला था ना सब्सटैंशियल लॉ पे जाती है, वो जाती है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। प्रॉमिसरी एस्टॉपल पे थोड़ा एलैबोरेशन बचता है। ठीक है, एक्सेप्शंस जो मैंने बताया एस्टॉपल के, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो इस लेक्चर में मैंने बताया कि एस्टॉपल माइनर के खिलाफ नहीं लगता, अगर दोनों पार्टीज़ को ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स पता है तब नहीं लगेगा, हैं दोनों पार्टीज अगर एस्टॉपल प्लीड करेंगे देन इट विल अनफोल्ड द मैटर एट लार्ज। एस्टॉपल डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट अ पॉइंट ऑफ लॉ, स्टैट्यूट और एनी सॉवरेन एक्ट। रिमेंबर दिस, ये एक्सेप्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे ये एक्सेप्शन ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।
I'll see you tomorrow.